Good afternoon, dear students. Today we will start another poem, important poem, which is in your syllabus. That is Unknown Citizen. And Unknown Citizen, I always say you that these are recapitulate, these are revision lectures. There you will understand only the important pointers, because these are regional lectures. I have already provided you the offline classes. I will recapitulate this very quickly. That is the Unknown Citizen. Unknown Citizen is written by W.H. Auden. And you have to remember some important pointers. That is his DOB, his date of death. These are important, you have to remember them. And this is the photograph of W.H. Auden. I will first of all start from your textbook, because most of the questions will be asked to you from your textbook. Page 157. W.H. Auden, you have to remember, is an eminent 20th century English poet. That it is known to you that he is of the 20th century, that he is born here. And he was a playwright, critic also. I got your textbook, I say from here. And he has make the very good analysis in his poetry. He has studied at Oxford University, which is known to you, they are the leading university, Oxford and Cambridge. He has get his education there. His poetry is anti-romantic and realistic character. That is, his poetry does not deal with the romantic, that deals with the reality. You have to remember this. He is considered as a major influence on the English poetry, and his first volume is called Poems. जो इसका फर्स्ट वॉल्यूम है पोइम्स का, उसका नाम ही है पोइम्स, नाम ही है उसका है पोइम्स. इसका नाम ही है पोइम्स. You have to remember this. And this was published, this poems was published in 1930. These are some important pointers. His own work has been seen as a response to the social and political issues. That is, whatever he has written, these were the responses to the political and social evils of that time. Yes. You have to remember his some important works that are in memory of W.B. Yeats, and he has also won Pulitzer Prize for his poem, long poem, The Age of Anxiety. तो ये था आथर के बारे में थोड़ा, क्योंकि आपको वहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ज़्यादा आथर के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने जल्दी किया है. Now about the text, I always say you that the title itself shows what about is the poem. Here the unknown citizen, there is a citizen who is not known. His name is not known to the government, but his number is known to them. यानी कि यहाँ एक अननोन सिटीजन होता है, एक सिटीजन होता है जिसका नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उसके नंबर से पहचाना जा रहा है, उसके नाम से नहीं. हालांकि उसने कोई गलत काम नहीं किए हैं, आप खुद आप देखेंगे. दिस वाज रिटन इन, यू हैव टू रिमेंबर, इन 1939. मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये रिविजन क्लासेस हैं. फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं कंप्लीट एनालिसिस यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी किए हैं. फिर वो लेंथी होगा, 1-2-3 घंटे इसका होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. अब मैं आपको मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कैसे लिखेंगे. इसमें ह्यूमर और सिटायर है इस पोएम में, यानी कि जो आज के एवरेज या मॉडर्न सोसाइटी में इंसान है उस पर ये तंज कर रहा है. यहाँ आप देख सकेंगे कि जो ये अननोन सिटीजन है, उसका मैंने आपको पहले ही कहा, ऑफिशियल रिकॉर्ड इसमें इसका नाम नहीं है, उसका नंबर है. जैसे हमें आजकल आधार कार्ड इसके नंबर मिलते हैं, हम उन्हीं आधार कार्ड इसके नंबर से पहचाने जा रहे हैं.
इसी तरह इसका भी था। तो अब मैं डायरेक्टली आऊँगा पोएम पर, थोड़ा आपको मैं यहाँ एनालिसिस की दिखाऊंगा। थोड़ा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास हैं ये आपको याद रखना है, ये रिवीजन क्लास है, आप मुझे जल्दी करना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है। हाँ, यहाँ है द अननोन सिटीजन, ये है उसका नंबर। टू दिस मार्बल मोनूमेंट इज इरेक्टेड बाय द स्टेट, यानी कि जब उसकी डेथ हुई है फिर उन्होंने उसकी जो कब्र है आपको मालूम है, उस पर उन्होंने फिर ये स्टोन रखी हैं, टाउन पर वो स्टोन रखती है, तो उस पर ये नंबर दिया हुआ है। तो ये यहाँ कह रहा है कि उसका नाम नहीं है, उसका नंबर है। अब हम यहाँ से थोड़ा देखेंगे जल्दी, मैंने फिर भी से कह रहा हूँ कि यहाँ हम एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं, डीपर एनालिसिस नहीं करते। मैं आपको एक स्टोरी टाइप कह रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ही वॉज फाउंड बाई ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट होम देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट, यानी कि वहाँ एक हम कहेंगे डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो ये देखते हैं कि किसी के खिलाफ कंप्लेंट मर है, मगर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं समरी टाइप कह रहा हूँ। एंड ऑल द रिपोर्टर्स ऑन हिज कंडक्ट एग्री दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशनड वर्ड ही इज ए सेंट, यानी कि इसको जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं वो दिखाते हैं वो अच्छा आदमी था, वो सेंट था। सेंट माने मतलब अच्छा आदमी, उसको कोई मतलब बैड या इविल कैरेक्टर वो नहीं था, वो गुड था। फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व्ड द ग्रेट कम्युनिटी, यानी कि उसने कम्युनिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया था, उसने उनको सर्व किया है। उसके खिलाफ वो कभी नहीं उसने कुछ नहीं किया है, एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही टोल्ड, यानी कि इसका कहने का मतलब उसने हर हमेशा सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया था। ये तो सीधी सी बात है, जब जंग होता है, जंग के वक्त कोई कुछ नहीं कर पाता है, तो उसने भी नहीं उस वक्त किया है, तब तक जब तक रिटायर्ड बेचारा हुआ है। ही वर्कड इन फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स फ्रिज मोटर्स इनकॉर्पोरेशन, हम जिसको कहते हैं, यानी कि ये एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और कभी उसने मतलब गॉड फायर या गुस्सा नहीं किया है, कभी स्ट्राइक नहीं की है। ये सेटिस्फाइड था अपने जो वहाँ इसको वो मतलब जिन्होंने इसको वहाँ मुलाजमत दी है। ये एक फैक्ट्री में काम कर रहा है जिसका नाम है फ्रिज मोटर्स इनकॉर्पोरेशन। अगर हम एक्चुअली देखेंगे ये कोई कंपनी नहीं है, ये इमेजनरी यहाँ आथर कह रहा है इस कंपनी के बारे में। Yet he wasn't escape or old in his views, for his union reporters that he paid his dues, यानी कि उसने अपने जो इसके ड्यूज थे, जो भी इसको देने थे यूनियन को, आपको मालूम है कि हर किसी की अपनी अपनी यूनियन होती है, वो इनको वो पैसे दे रहा था, फी दे रहा था। Our report on his union show that it was sound, यानी कि जो यूनियन वाले कह रहे हैं वो इसके बारे में यही कह रहे हैं कि वो साउंड था, उसका दिमाग ठीक था, वो ठीक तरह से काम कर रहा था। एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड दैट ही वाज पॉपुलर विद हिज मेट्स एंड लाइक ए ड्रिंक। आपको मालूम है कि जो वेस्टर्न है वहाँ वो ड्रिंक पीते हैं, शराब पीते हैं, वो इनको मतलब जैसे हम यहाँ चाय पीते हैं इनको वैसे ही लग रहा है। ये कह रहा है कि जो साइकोलॉजी वाले हैं, जो माइंड के साथ डील करते हैं, उन्होंने कहा कि जो इसकी मेट्स थे यानी कि कोलीग्स थे, उनके साथ उसको बहुत अच्छा रिश्ता था, यानी कि उनके साथ वो लड़ता नहीं था, वो अच्छा था। द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट ए पेपर एवरी डे, और ये मतलब वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा था, प्रेस इसके बारे में कह रहा है, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा था। एंड दैट हिज रिएक्शंस टू एडवर्टीजमेंट वर नॉर्मल इन एवरी वे, यानी कि जब भी वो एडवर्टीजमेंट कोई देख रहा है वो इसके खिलाफ नहीं कह रहा था। वरना आप देख रहे हो कि हम किसी की एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हम उसके खिलाफ कहते हैं या हम उसको ज़्यादा ही तारीफें करते हैं, बड़ा चले कि इसका वे था नॉर्मल। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज दैट ही वॉज वंस इन ए हॉस्पिटल बट लेफ्ट क्यूर्ड, और
आपको मालूम है जैसे आज यहाँ हमें देते हैं गोल्डन कार्ड्स, उसी तरह वहाँ उनको देते थे हेल्थ कार्ड्स, और वो जो हेल्थ कार्ड था वो ये दिखा रहा था कि एक बार वो बीमार हो गया है मगर फिर तो वो ठीक हुआ है। हाँ, both producers research and high grade living declare he was fully sensible to the advantages of installment plan, यानी कि वो फायदा उठा रहा था इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब वो चीज थिंग्स खरीद रहा था। दो वहाँ कंपनियां हैं रिसर्च एंड हाई ग्रेड, प्रोड्यूसर्स रिसर्च और हाई ग्रेड, उन्होंने कहा है कि उसने उनके पास बहुत सारी चीज़ें लिए हैं और उनको वक्त पर वो पैसे वापस दिए थे उसने। एंड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन, उसके पास हर कोई चीज़ था जो आज के मॉडर्न इंसान के पास होना चाहिए। एक मतलब क्या क्या आपको मालूम है, मिसाल के फोनोग्राफ, जिसको आजकल हम कंसिडर करेंगे मोबाइल और फोन, रेडियो, जैसे आजकल आप तो ये मतलब पुराने ज़माने की बात है, आज टीवी है, बाकी चीज़ें, फ्रिजरेटर हियर माने फ्रिज। Our researchers in the public opinion are content that he held the proper opinion for the time of the year। और जो रिसर्चर्स हैं उनकी राय ये है कि जो इसकी मतलब प्रॉपर ओपिनियंस है वो ठीक निकलते थे साल के लिए, मतलब जो भी वो कह रहा था वैसा ही हुआ करता था। When there was peace, he was for peace. When there was war, he went। ये कह रहा है कि जब वहाँ पीस होता था तो वो भी बेचारा पीसफुल हुआ करता था, और जब वहाँ कोई जंग हुआ करता था तो वो जंग के लिए लड़ने के लिए निकल रहा था। यानी कि वो हर किसी सिचुएशन देखकर अपना काम कर रहा था। ये सोसाइटी के अपोजिट उसने कभी नहीं किया है। He was married and added 5 children to the population। उसने तो शादी की है, उसके 5 बच्चे थे, ये आपको याद रखना है, ये काम आएगा आपको लिखने में। Which our eugenist says was the right number for the parents of his generation। यानी कि आज आपको मालूम है, आज कहते हैं दो हमारे दो, या 2 से माफी 1 ही काफी, मगर उस वक्त जो यूजेनिस्ट थे यानी कि जो पॉपुलेशन से डील कर रहे, उस वक्त ये ठीक नंबर था, ना ज्यादा था ना कम था। एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन। यानी कि जो टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उसके बच्चे थे उसने उनके एजुकेशन में कभी मुदाखलत नहीं की। हाँ, was he free, was he happy। मगर लास्ट पर क्वेश्चन ये है कि मतलब इतना हमें मालूम है इसके बारे में, मगर इसका इनर हमें मालूम नहीं है। एक्सटर्नल उसकी सोसाइटी के साथ क्या डीलिंग है वो हमें मालूम है, मगर इसका इनर हमें मालूम नहीं है, किसी का मालूम नहीं होता है। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैन। इट इज नोन टू यू दैट द साइंटिस्ट्स दे हैव डिस्कवर्ड, दे हैव इन्वेंटेड द इनविजिबल थिंग्स, बट they are not able to understand the psychology or the mind of the man। इसके कहने का मतलब ये है, was he free, was he happy, this question is absurd। यानी कि इस क्वेश्चन का हमें जवाब नहीं मिला, ये कभी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। Had anything been wrong, we should have certainly have heard। अब बात ये है, अगर मतलब इसको कोई मतलब रॉन्ग होता है तो हमने सुना होगा, उसने कभी कहा होगा। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इतना तो काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो मैंने पढ़ाया है मैंने यहाँ एनालिसिस पॉइंट को नहीं की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आप मुझे मैसेज करें सर आपने वो पॉइंट नहीं कहा, आपको एनालिसिस करने चाहिए इसकी, मतलब इसके राइम क्या है, रिदम क्या है, बाकी एनालिसिस। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी मतलब इसको रिवीजन लेना है। ये रिवीजन है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप थोड़ा कुछ लिखना चाहिए, वरना मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको ये पढ़ाया था। अब थोड़ा मैं आपको क्वेश्चंस कहूँगा कि क्वेश्चंस क्या हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस वहाँ में भी वो पोज करेंगे। हाउ डज द पॉइंट शो दैट द लाइफ ऑफ द मॉडर्न सिटीजन इज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन।
यानी कि आपने देखा है कि यहाँ पॉइंट यही में दिखा रहा है, जो आज का इंसान है उसकी जो लाइफ है वो रूल्स और रेगुलेशंस के, मतलब जो गवर्नमेंट उसको रूल्स और रेगुलेशन के थे उन्हीं के मातहत होना चाहिए। जैसे आपने देखा उसको नंबर दिया गया है, उसकी नज़र, हर किसी की नज़र उस पर थी, वो क्या करता था क्या नहीं करता था, यानी कि हमारे पर भी नज़र होती है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम पर कोई नहीं देखता है, हमारे पर भी बहुत सारे लोग हर किसी पर नज़र रखते हैं, गवर्नमेंट के जो एजेंट होते हैं। Why is a question of freedom that is posed at the end considered absurd? आपको मैंने पहले ही कहा, लास्ट पर हमने देखा है जो क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम है यहाँ लास्ट पर, ये तो एब्सर्ड है, यहाँ दिखा रहा है ये एब्सर्ड है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा है ये हमें मालूम नहीं है, इनर हम किसी का खुश नहीं कह सकेंगे, यानी कि कौन खुश है कौन नहीं है, बाहर से हम हंसते हैं अंदर से हमें मालूम है, जिसको हम कश्मीरी कहते हैं अंदर दुध को पानत नब्र रिजल्ट हो लुक। आजकल जो लोग हैं वो यही करते हैं, पाप एंड शो करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, फिर अंदर से इनको क्या होगा वो इन्हीं को मालूम है। इसीलिए यही कहने, इसको कहने का मतलब है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द अननोन सिटीजन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो इसका टाइटल है अननोन सिटीजन, ये तो मतलब अप्रोप्रिएट टाइटल है। मैंने आपको बार बार कहा है कि इट वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड। जो ये मतलब फिर हम ये पोइम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये पोइम इसी टाइटल के इर्द गिर्द घूमते हैं, हम किसी जगह इसका नाम नहीं देखते हैं, किसी जगह इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं देखते। हाँ, अगर हम देखते हैं तो वो नंबर है, हम नंबर से इसका मतलब नाम बाकी एक मालूम नहीं कौन है क्या है, इसलिए अननोन है, हालांकि उसने कोई गलत काम भी नहीं की थी। डिस्कस द यूज ऑफ द आइरेनी एंड सटायर इन द पोएम। अब हमें यहाँ दिखाना है आइरेनी, आइरेनी मीन्स हैरानी और सटायर मीन्स तनज। अब हमें दिखाना यही है कि कहाँ कहाँ उसने ये यूज़ किया है। आप जब आप इसके एनालिसिस करेंगे वहाँ तो आप देख सकेंगे लाइन बाय लाइन हर जगह यहाँ ये सटायर और ये है। फिर मैं आप थोड़ा कहूँगा, मिसाल के लिए अगर हम समरी में देखेंगे कि ये पहले ही तनज कर रहा है कि देखो ये बेचारा, इसका नाम ही नहीं है यहाँ है, ये तो सटायर नहीं है और क्या है, नाम तो रखना चाहिए मगर इसका नंबर है। इसी तरह गवर्नमेंट ने इसकी ये क्या कहते हैं, इसकी कबर पर रखी है मोनूमेंट, ये स्टोन रखी है, ये उन्होंने वहाँ लिखा है, ये गवर्नमेंट ने रखा है। इसी तरह बहुत सारे यहाँ एजेंसीज हैं जिन्होंने उस पर नजर रखी है, जैसे कि वो मतलब कैदी हैं, जैसे वो प्रिजनर था बेचारा इस दुनिया में। वरना तो अगर हम उसकी मतलब लाइफ देखते हैं, वो बेचारा बहुत अच्छा था, कभी उसने कुछ नहीं किया है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया है, मगर फिर भी कितने एजेंसीज उस पर नजर रखते थे। तो ये मतलब यहाँ आयरनी है और सटायर दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, मगर फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि ये रिवीजन क्लासेस हैं, ये फुल्ली क्लासेस नहीं हैं। मैंने जो इस पोइम को आपको पढ़ाया है, ये मैंने आपको यहाँ इसकी पूरी एनालिसिस नहीं की है, मैंने आपको ये दिखाया है कि इसकी आप समरी कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो वरना ये फुल नहीं है, इसका आपको ख्याल रखना है। ओके बाय।